Hello everyone, welcome to online classes of chemistry developed by Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Children, we are going to start a new topic of alcohol in the second part of this video. We are going to start the general methods of preparations of alcohol. In the last video, we have discussed about the alcohol's introduction, what are their IPC name and their common names, the classification of alcohols and the definition of alcohols. Now we are going to form the general methods of preparation, how we can prepare alcohols in laboratory or in industrial developments. Now let's start the topic. The first method of general methods of preparation of alcohol, नंबर 1 पॉइंट जो है वो हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन टॉपिक को हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. अब उस एल्कीन से हम क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल बनाने वाले हैं. उसमें जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास चिल्ड्रन वो क्या है, बाय द एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल. वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल. Simply we are taken a alkene, that is ethene, and ethene, the example or the topic given acidified hydrolysis. The meaning of hydrolysis is the addition of water in the presence of acid. We are going to add the water molecule in the presence of dilute acid. Dilute acid may be HCl, may be H2SO4, may be nitric acid in the dilute form. Now according to Markovnikov rule, this alkene is a symmetrical alkene, therefore there is no problem to add the substance in this molecule. We have H plus in the water and OH minus in the second half. We are going to break this pi bond and we add H plus to one carbon and OH minus to another carbon. Simple way. If the alkene is symmetrical, there is no problem to addition the water molecule. The proton move to one carbon and the hydroxide ion move to another carbon, and we have to break down the pi bond of the alkene. Then H plus को हमने यहाँ ऐड किया, OH minus को हमने यहाँ ऐड किया, then the formula of the compound will be CH3 CH2OH. This compound is known as ethanol. Okay, now we are going to the higher member of the alkene. The higher member of ethene is propene. CH3 CH double bond CH2. This is our molecule propene, and we are going to add the water molecule in the presence of dilute acid. We are taken a dilute HCl, hydrochloric acid. This alkene is asymmetric alkene, therefore we have to use Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, the hydroxide part, or we can say the negative part of the addition compound, negative part which is OH minus, the negative part of the water molecule move to the asymmetrical carbon which is unsaturated and have minimum number of hydrogen atom. Look at this carbon, both carbon are sp2 hybridized, this carbon is sp3 hybridized, so there is no requirement to do something at this carbon. We are going to change this carbon, that is sp2 hybridized. This carbon have 2 hydrogen and this carbon have 1 hydrogen. Both are asymmetrical and both are unsaturated. Then the OH minus ion move to the carbon which have least number of hydrogen, and the H plus ion move to the carbon which have more number of hydrogen atom according to Markovnikov rule. And similarly we have to break down the pi bond of the compound. Then we get the compound, what will be CH3 CH, this is OH, single bond, pi bond we have broken, and this is CH3. हम जानते हैं this compound is known as isopropyl alcohol. सिंपल वे में हम इस काम को कर लेंगे. इसी प्रकार से सेम एग्जांपल हम 11th क्लास में भी लेके आ चुके हैं. जब हमने एल्कीन पढ़ी थी तब हम एक और टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं. मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये क्वेश्चन चलते रहते हैं, आप लोग ध्यान से इनको याद रखेंगे, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमने ले लिया CH3. दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिकल एल्कीन.
ठीक है बच्चों, आप देखिए दोनों कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 एल्किल ग्रुप आ चुके हैं, दैट इज मेथिल ग्रुप, एसिमेट्रिक एल्केन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। हम वापस यहीं पर क्या ऐड करने वाले हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। व्हाट विल बी द प्रोसेस टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल? वी हैव सेड दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट विच इज हाइड्रोक्साइड आयन, तो negative part of the water molecule move to that carbon which have least number of hydrogen atom, then this OH minus move to the second carbon and the H plus ion move to the carbon which have more number of hydrogen। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर काम नहीं कर देंगे, बिकॉज ये जो दोनों कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो हम वहाँ पर काम नहीं करने वाले। मार्कोनिकॉफ रूल एसिमेट्रिकल एंड अनसैचुरेटेड कार्बन पर ही फॉलो होता है, इसलिए हम इस H प्लस को यहाँ ऐड कर देंगे। पाई बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा, देन वी कैन राइट दिस CH3 सिंगल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस becomes CH3 single bond and this is OH। In the last video what name is given to this carbon, this organic compound? This is our tertiary butyl alcohol, or in the IUPAC form this is 2-methyl propane to all। Okay children, you have learned this the process of the hydrolysis of alkene in the presence of acid। This is our first case from alkene। Second form we are going to learn which is, जो सेकेंड इसका पार्ट है वो हम एल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। जो हम ऐड करने वाले हैं वो है हमारे पास में बोरोन ट्राईहाइड्राइड। क्या चीज़ है बच्चों हमारे पास में? वो बोरोन ट्राईहाइड्राइड। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, बाय हाइड्रोबोरेशन। ठीक है बच्चों, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है, बोरेशन का मतलब हो गया बोरोन, तो और ये जो TiON आता है इसका मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर किसको ऐड करने वाले हैं बच्चों? BH3 को, बोरोन ट्राईहाइड्राइड को। इसी एग्जाम्पल को हम इसके जो डाइमर होता है उससे भी ले सकते हैं, दैट इज़ अवर डाइबोरेन B2S6। सेम परफॉर्मेंस इसके साथ भी होगा, तो हमको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है और ये भी, आप इसी से इसको याद रख लेंगे। जो एग्जाम्पल होगा, जो इसका आंसर होगा वो सेम इसी फॉर्म पे होगा। हमने यहाँ पर एल्कीन ली, सपोज हमने लिया एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद BH3 बोरोन ट्राईहाइड्राइड के साथ में। यहाँ पर हमें जो है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, बट द एल्केन गिवन इन द एग्जाम्पल इज अ सिमेट्रिक एल्केन एंड देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंस। नाउ वी आर टेकन अ BH3, 3 हाइड्रोजन्स आर देयर, देयरफॉर वी हैव टू टेक दिस एल्कीन इन द 3 फॉर्म या ट्राइमर फॉर्म, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि आप इनमें दोनों में से कहीं भी इसमें से हाइड्रोजन को निकाल करके इसमें डाल देंगे। 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों के तीनों हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 है बच्चों ये ट्राइमर फॉर्म में हो चुका है, और किसके साथ ऐड हो चुका है? ये बोरोन के साथ ऐड हो चुका है। आपको बात समझ में आ गई या नहीं? मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। ये आपका BH3 था, ठीक है, और ये आपके पास में एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कैसे यहाँ भी लेता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक यहाँ लिख लेता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, पाई यहाँ से भी ब्रेक किया, तो मैंने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इस हाइड्रोजन को मैं मूव करके यहाँ ले गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। इसको मैं यहाँ ले गया, सॉरी इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको मैंने यहाँ लिखा तो ये भी CH3 हो गया। इस वाले को मैं यहाँ लेकर चला गया तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 में। अब बताइए तीनों हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर चुके हैं, तो वैलेंसी इस बोरोन की क्या हो चुकी है? एम्प्टी हो चुकी है। हमने इस CH2 को इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, इसको इससे लिंक कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला यही बन के आया हुआ है क्या? तो इस कंपाउंड का नाम है ट्राई एथिल बोरेन। क्या नाम है बच्चों इसका? ट्राई एथिल बोरेन जो है इसका नाम हो गया, ठीक है, इसका नाम है ट्राई एथिल बोरेन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर टेकन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं। अब कितने हमने यहाँ मल्टीप्लाई किए थे? 3 से, तो ये H2O2 भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे? यहाँ पर 3 से। अब इसके साथ में वाटर भी होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ ओपन करता हूँ,
H2O2 को सिंपली इस तरह से लिखा जाता है। हमने कितने लिए हुए हैं यहाँ पे? 3 लिए हुए हैं। तो ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गए। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। अब 3 हमारे पास ये थे, तो 3 OH जो हैं 1 2 एंड 3, वो तो हमने इसको दे दिए 3 हैं ये, तो हमने इसको क्या लिख लिया 3 CH3 CH2 OH। समझ गए आप लोग? 3 हमारे पास एथिल ग्रुप थे, उन तीनों को हमने 3 OH प्रोवाइड कर दिए, तो ये हमारा एथेनॉल बन गया। बचा मेरे पास बोरॉन, इस बोरॉन को मैंने 3 OH दे दिए, तो हमें क्या मिल गया? BOH होल थ्राइस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? H3BO3, इट इज़ आवर बोरिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है ये। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जी हमारे पास में एसिमेट्रिक एल्कीन आ गई। अब आपको जो BH3 लेना है, लेने तो आपको यहाँ पर इसको 3 से तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे? एंटी मार्कोनिकोव रूल से करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। जब BH3 को लिखा जाता है तो हमने इसको ऐसे लिखा था, जब ये बॉन्ड टूटता है तो बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा हुआ है, उसमें ये कहा जाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग कंपोनेंट इज मूव टू दैट कार्बन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास। इसके पास नहीं जाएंगे, एसिमेट्रिक कार्बन ये है, अनसैचुरेटेड ये है, तो हम यहीं पर काम करने वाले हैं। तो ये जो BH2 नेगेटिव बचा उसको हम कहाँ पर ऐड करेंगे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास में? पॉजिटिव। तो BH2 नेगेटिव को तो कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। और इस H+ को कहाँ लेके चले जाएंगे? यहाँ पर लेके चले जाएंगे। तो हमको क्या मिलने वाला है? आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख देंगे आगे? हम इसको क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 3B। 3 लिए थे, तीनों के तीनों H एक एक करके निकल चले जाएंगे और ये बोरोन अकेला रह जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्राई प्रोपिल बोरेन। क्या बन गया हमारे पास में? ये ट्राई प्रोपिल बोरेन। सिमिलरली इसको हमने वही 3 HOOH वाटर की प्रेजेंस में लिए हुए हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये तीनों OH हम इसके साथ में ऐड कर देंगे, है ना। और बचे हुए जो OH हैं 3 ही है भी, ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, दैट इज़ अवर प्रोपेनॉल। इसको क्या कहा जाता है? प्रोपेनॉल। और जो सेकंड जो पार्ट है वो इसके साथ में बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? H3BO3। ओके बच्चों, एक होमवर्क के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप घर पे करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे ही होगा। और वो एग्जांपल ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है? BH3 से करनी है। और मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर मुझे क्या मिला। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट हो गया, बाय द हाइड्रोबोरेनेशन ऑफ एल्कीन। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ आवर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ओके, तो अब की बार हमारे पास में थर्ड जो इसका पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ एल्कीन। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक एल्कीन ली हुई है, हमने डायरेक्टली यहाँ पर ले ली प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन जो है हमें किससे करनी है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, विच फॉर्मूला इज CH3COO होल ट्वाइस Hg। प्रेजेंस किसकी रखनी है अपन को? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और साथ में हमें रखना है वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना बच्चों। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ कि क्या होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O Hg O C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, ठीक है ना। जब रिएक्शन होगी तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया। साथ में हमारे पास में क्या था? वाटर मॉलिक्यूल था। तो इस वाटर मॉलिक्यूल का जो H+ है वो इसके साथ में निकल जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे, तो इसका रिएक्शन होती है तो ये जो हमारे पास में रिएक्टेंट लिया हुआ है सेकंड, इसका जो एसीटेट आयन है वो वाटर के H+ के साथ निकल जाएगा, तो माइनस हो गया CH3COOH। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक तो हाइड्रोक्साइड आयन बचा हुआ है, एक ही हमारे पास में मर्क्यूरिक एसीटेट आयन बचा हुआ है। यहाँ पर भी हमें जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल को ही फॉलो करना है। हमारे पास 2 पार्ट है, 2 कंपोनेंट है, एक नेगेटिव कंपोनेंट और एक पॉजिटिव कंपोनेंट। जो हमारे पास में एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो ये कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है? जो कार्बन एसिमेट्रिक हो।
जो अनसेचुरेटेड हो और लिस्ट हाइड्रोजन को रखता हो। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास में कौन जाने वाला है, OH। तो इस OH माइनस को हम यहाँ पर लेके जाएंगे और इस वाली चीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, CH3 CH पर क्या चला गया, OH चला गया, पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड ये CH2 और इसके साथ में ये क्या था हमारे पास में CH2, इस पर हम इस पॉजिटिव को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा HgOC डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से हमने क्या काम किया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी का मतलब हाइड्रोक्सी और मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट का जुड़ना, हाइड्रोक्सी भी जुड़ गया और मर्क्यूरिक एसीटेट आयन भी जुड़ गया। तो ये तो हुआ हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं, रिडक्शन पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये लिया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेसिक मीडियम, ठीक है। तो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर बच्चों, NaBH4 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लेके आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन एटम लेके आ रहे हैं यहाँ पर, 2। इन 2 में से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इसको मिलेगा, आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम जो हमारे पास था वो किसको मिल गया, इसको। तो क्या बाहर जा चुका है, एसिटिक एसिड बाहर जा चुका है, मर्करी लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा, बचा हुआ जो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, CH3 CHOH एंड दिस इज CH3 एंड हमारे पास मर्करी लिक्विड फॉर्म में मिल गया, प्लस हमको क्या मिल गया, CH3 COOH मिल गया। अब इसमें नोट वर्दी पॉइंट क्या है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ 1 डिग्री अल्कोहल जो है हम यहाँ पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो हमें यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा या हमें यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। सेम इसी कंसेप्ट को आप एक और एग्जाम्पल में अटेम्प्ट करेंगे और वो एग्जाम्पल कैसा है, वो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जो आप घर पे करेंगे, इसी पैटर्न पे होगा वो भी एग्जाम्पल जो आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझसे बात कर लेंगे, मैसेज कर देंगे मुझे। इसका हायर ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इसी कंसेप्ट को आप इसके साथ अप्लाई करेंगे। सेम आपकी बार 2 डिग्री, यहाँ तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल मिला था हमें, अब हमें 2 डिग्री नहीं मिलेगा बल्कि हमें कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आप एग्जाम्पल करके देखेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझसे बातचीत कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की ओर। तो हमारे पास 3 मेथड थे जहाँ पर हम एल्कीन से क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल। आपको रिवाइज कराता हूँ। पहला मेथड था कि एसिडिफाइड हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए आप एल्कीन का, तो अल्कोहल मिल जाएंगे आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन है एल्कीन का, उसके द्वारा भी हम अल्कोहल बना लेंगे, लेकिन वो अल्कोहल 1 डिग्री नहीं होंगे, वो होंगे आपके 2 डिग्री या 3 डिग्री। और थर्ड जो पार्ट था हमारे पास में वो था हमारे पास कौन सा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोबोरोनेशन है एल्कीन का, उससे हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग मेनली जो सेकंड पार्ट पढ़ा था आपने बोरोनेशन वाला, उसमें 1 डिग्री अल्कोहल ही आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेप की ओर, जहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज लेते हुए अल्कोहल बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है एल्कीन से, अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करने वाले हैं अपन कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। बच्चों लास्ट जो क्लास आपकी थी 10th चैप्टर की हेलो एल्केन, आप सब लोग यूट्यूब पे पढ़ के आ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा था। जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, आपके पास कोई भी हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब ये मैग्नीशियम मेटल इसके बीच में इनबिल्ट हो जाता है और हमें मिल जाता था RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को कहा जाता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जिससे हम लगभग सभी तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हम इसी का यूज़ लेते हुए क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल बनाने वाले हैं। तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, बाकी सारी रिएक्शन इसी की बेस चलेगी। आपको कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड में बी एल्डिहाइड, में बी कीटोन, में बी एसिड और में बी एस्टर, ओके बच्चों। तो या एसिड क्लोराइड हो सकता है, तो एसिड डेरिवेटिव हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो आपको कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। इसकी रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करनी है। R में भी एलिफेटिक, में भी एरोमेटिक, X आपका कोई भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो,
ठीक है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये जो R होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और MgX पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन कंपाउंड में इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देयरफॉर द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस पॉजिटिव चार्ज MgX to the O and the R negative to the carbon, then we obtain an intermediate compound। इस कार्बन पे हम क्या ऐड कर देंगे, कार्बन पे ऐड कर देंगे R को, और यहाँ हो जाएगा OMgX, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाएगा। उसके बाद में हम किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे HOH। तो हम क्या देखते हैं, इस O पे जो चार्ज है ये नेगेटिव है, MgX पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। तो ये H+ जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा। तो हम देखते हैं C, इस C के साथ में R है ही सही, और इस O के साथ में क्या आ गया, H। Therefore we obtain an alcohol species from the hydrolysis of this intermediate। and the second thing, MgX के साथ में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यानी मैग्नीशियम हेलो हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इसमें अलग अलग एल्कोहल बनाते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। अब बात करते हैं इसकी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की, जहाँ पर हम बनाने वाले हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनाएंगे, इसके अंदर पहला जो मेथड है, मैं इसको M लिख रहा हूँ, मेथड नंबर 1, आपको लेना है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेना है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये रहा, H ठीक है। इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दीजिए, RMgX। सिमिलरली वही कंसेप्ट रहेगा, R को हमें कार्बन पे लेके जाना है, MgX को हमें O पे लेके जाना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो HCH, इस O पे हमने क्या जोड़ दिया, MgX जोड़ दिया, और C पर क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया। अब हम इसका वही एसिडिफाइड क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो ये जो MgX है ये किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। H को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, अब इसको सिंपल वे में लिख रहा हूँ, RCH2, और ये क्या आ गया हमारे पास, OH। क्या आपको लग रहा है ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहला मेथड हुआ फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का। उसके बाद में मेथड जो 2 है वो भी सिंपल है। मेथड 2 के अंदर हम एथिलीन ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे हम, एथिलीन ऑक्साइड। बच्चों इसी का एक और नाम भी होता है, इसी को हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं, और इसी को हम इपॉक्साइड भी कहते हैं। बच्चों ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक साइक्लिक ईथर है। मैं बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये O और ये O। बच्चों सिंपल वे में ईथर जो होता है ROR होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये O है वो इन दोनों के साथ में कुछ इस प्रकार से ऐड हो रहा है ये, इसलिए इसको साइक्लिक ईथर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एथिलीन ऑक्साइड कहलाएगा, यही ऑक्सीडेंट कहलाएगा, यही इपॉक्साइड कहलाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, RMgX से। वी नो दैट द R इज नेगेटिव चार्ज एंड MgX इज पॉजिटिवली चार्ज। आप इसमें इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिए, चाहे आप इसका तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक। एक काम कर लेते हैं, इधर वाला कर लेते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक किया तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इसके पास गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस O पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस O नेगेटिव पर क्या जोड़ दूंगा, MgX, ठीक है, इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसकी जब रिएक्शन हुई और इस CH2 पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा, R, तो ये हो जाएगा RCH2 CH2, ठीक है। R को मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो RCH2 O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव पे क्या जुड़ गया, MgX। अब मुझे केवल वाटर मोलिक्यूल लेके आना है। वाटर मोलिक्यूल लेके जाऊँगा तो MgX किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा। H को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल गया, RCH2 CH2OH, और ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट था ही सही, MgX और ये OH। यहाँ भी हमने क्या बना लिया, एक प्राइमरी अल्कोहल बना लिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए प्राइमरी अल्कोहल को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो आता है हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं हम लोग। तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो अब जो है
हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्मेशन की। अब सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास क्या था HCHO, इसको नहीं लेना है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है RCHO वो ले लेंगे। R में भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, तो इनको ले लिया जाएगा तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से R-C=O और ये H, ठीक है। अभी मैंने कहा R यहाँ पर CH3 हो सकता है, R यहाँ C2H5 हो सकता है, R यहाँ C6H5 भी हो सकता है, मर्जी पड़े जो लीजिए आप। तो इस एल्डिहाइड को लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी RMgX से। अब यहाँ भी R आ रहा है, ये भी R आ रहा है, तो इसको अलग दिखाने के लिए मैं इसको R1 या R' लिख लेता हूँ। अब जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हम रिएक्शन जानते हैं R', ये H हो जाएगा, ये हो जाएगा OMgX, और इस कार्बन पर हम इस R' को ऐड कर देंगे। इन द लास्ट फॉर्म वी आर गोइंग टू ऐड द वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल OH माइनस जो है वो इस X के साथ चला जाएगा और ये H को हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो RCH R' और ये क्या बन गया OH। तो आप देख रहे हैं OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा अल्कोहल बना दिया हमने, 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। साइड प्रोडक्ट इज सिमिलर MgX एंड दिस इज OH। अब इसका सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एस्टर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में IPSC में। एस्टर का फॉर्मूला होता है RC=OOR', ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला R है जो एल्किल, इसकी जगह पे होता है H, और ये R हमारे पास में एल्किल होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से H-C=OOR'। तो इसको कहा जाता है एल्किल फॉर्मेट। इसको क्या लिखा जाता है, एल्किल फॉर्मेट इसको लिखा जाता है एल्किल। ये जो R' है बच्चों, ये R' आपका CH3 हो चाहे C2H5 हो, कुछ भी हो, ये H आपका फिक्स है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाने वाले हैं, अब यहाँ भी R आएगा, RMgX आएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस R को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ पे, और MgX को कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ पे। तो हमको क्या मिला, H-COMgX, और यहाँ हो जाएगा OR', और ये हो जाएगा हमारे पास में R। अब लास्ट फॉर्म हम जानते हैं, यह वाटर मोलिक्यूल को लेना है। MgX किसको लेके चला जाएगा, OH को लेके चला जाएगा, H को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा HCr, ये हो जाएगा OR', और ये हो जाएगा हमारे पास में OH, ठीक है बच्चों। जैसे इसकी रिएक्शन जब आगे चलती है तो ये जो R'(O) है वो किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर इसके साथ में। ये हम सिंपल कहें, हम इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, वाटर से करवा देते हैं, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, वाटर से करवा देंगे। जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो R'(O) जो है वो किसको लेके चला जाएगा, H पॉजिटिव को लेके चला जाएगा। तो इसमें से एक R'(OH नाम का अल्कोहल निकल जाएगा, और इस OH को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये जब ऐड हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास में H-CR, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा हमारे पास में OH। अब जब इसको हीट किया जाता है तो 2 हाइड्रोक्साइड एक ही कार्बन पर है, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, हीट करने पर H2O। इसमें हीट करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिल गया एक एल्डिहाइड, दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R'(C=OH। वापस से हम इसकी रिएक्शन जब Gr से करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमें वापस अल्कोहल प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर कौन सा अल्कोहल देगा हमें, ये 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे जो आज के वीडियो है उसके अंदर आपने ये पढ़ा कि जो अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं। मैं इसी रिएक्शन को दोबारा अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करवा दूंगा। फिर आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम कि अल्कोहल को फॉर्मेशन हम और कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। अगली क्लास में हम टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।